السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ معزز طلاب، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت کتاب التوحید کا درس سماعت کر رہے ہیں۔ کتاب التوحید یہ معالی الشیخ العلامہ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے لکھی ہے، اور جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کشمیر نے وسیع پیمانے کے ایک تحریری تقابلی پروگرام میں اس کتاب کو بطور سلیبس مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اس پروگرام میں حصہ لینے والے جملہ و طلباء و طالبات کے لیے خاص طور پر اور عوام الناس کے استفادہ کے لیے عام طور پر اس کتاب کو کچھ لیکچرز کی صورت میں طلباء و طالبات کے لیے پیش کرنے کی میں سعادت اس وقت حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کے صدر تحصیل ہمارے مکرم برادر شبیر صاحب کے مطالبہ پر میں یہ ویڈیو لیکچرز آپ سبھی معزز طلباء و طالبات کے لیے تیار کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالی آپ سبھی طلباء و طالبات کو جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے، آپ کو اس کی کامیابیوں سے نوازے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کی کامیابیوں سے بھی نوازے۔ چونکہ کتاب آپ کے سکرین پر نمودار ہو رہی ہے، کتاب التوحید تالیف ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ۔ کتاب کے شروع میں ناشر کے کچھ کلمات ہیں، اس کے بعد شیخ مکرم حفظہ اللہ کا ایک علمی مقدمہ ہے جس میں انہوں نے اس کتاب کو لکھنے اور اس میں جو انہوں نے منہج اختیار کیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یا عربی میں آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے وہی ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ مقدمہ مؤلف: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ راقم سطور کی زیر نظر کتاب علم توحید پر ایک سنجیدہ تالیف ہے۔ اس میں اختصار کے ساتھ بہت ہی آسان و عام فہم اسلوب و زبان کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے۔ یہ علم توحید پر اس کا موضوع ہے، اور یہ آسان و اہم فہم اسلوب میں ہے۔ یہ اس کی خصوصیت اور اس کا منہج ہے۔ تالیف کے دوران اپنے اسلاف کرام سلفی دعوت و تحریک کے علماء اعظام، خاص طور پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم الجوزیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کے تلامذہ کی کتابوں و تحریروں سے اقتباس و استفادہ کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے مصادر ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی عقیدہ، خاص طور پر توحید کا علم، بہت ہی اہم اور بنیادی ہے۔ یہ اب اس کتاب کے مضمون اور عقیدہ توحید کی اہمیت بیان کر رہے ہیں مؤلف، کہ اسے سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینا ہمارا اولین فریضہ ہے، اس لیے کہ بندوں کے اعمال کی صحت، یعنی اعمال کا صحیح ہونا، مقبولیت، قبول ہونا اور نفع بخش ہونے کا یہی ایک راستہ ہے۔ خاص طور پر ایسے وقت اور ماحول میں جہاں الحاد، یہ ایتھیزم جو آج آپ لوگ سن رہے ہیں، ایتھیزم، تو یہ الحاد ہے۔ تصوف، رہبانیت، قبر پرستی اور سنت و شریعت مخالف بدعتوں کی تیز و تند آندھیاں چل رہی ہیں۔ طرح طرح کی گمراہ کن اور خطرناک تحریکیں اور جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو ایسے میں توحید کو جاننے، توحید کے مطابق عمل پیرا ہونے کی اہمیت بالکل واضح ہے۔
ایسے زہر آلود عہد و ماحول میں اگر مسلمان کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدہ پر مبنی صحیح عقیدہ سے لیس نہ ہوں تو بہت جلد ہی انہیں یہ گمراہ کن و فاسد لہریں بہا لے جائیں گی۔ ان خطرات کے پیش نظر مسلم بچوں کے لیے، یہ خاص طور پر دھیان سے دیکھیے، مسلم بچوں کے لیے کتاب و سنت پر مبنی صحیح عقیدہ، پھر اس کی تعلیم و تلقین کا اہتمام اور انتظام بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے صدر تحصیل نے اس کتاب کو اس سلیبس میں مقرر کر کے اس چیز کا جو ہے اہتمام کیا ہے اور اس ضرورت کو الحمدللہ سمجھا ہے اور انہوں نے یہ کام جو ہے انجام دیا ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں زیر نظر کتاب اصلاح کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ مؤلف۔ تو اللہ توفیق سے نوازے جمعیت اہل جموں کشمیر کو اور خاص طور پر تحصیل ناربل ہمارے صدر تحصیل محترم شبیر صاحب اور ان کی جملہ ٹیم کو، جنہوں نے اس کتاب کو اس سلیبس میں مقرر کیا اور اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل ان سبھی حضرات کو اجر عظیم اور جزائے خیر سے نوازے جنہوں نے ان کا تعاون کیا ہو۔ ایسے پروگرامات، ایسے جو پروگرام ہیں اور ایسے جو مثلا جو مقابلہ پر مبنی تقابلی جو امتحانات ہیں، یہ بچوں اور بچوں کے لیے نہایت زیادہ مفید ہیں اور ان پر جو ہے کافی زیادہ خرچہ بھی آتا ہے، لہذا ان چیزوں کی طرف دھیان دینا، ان پر معاونت کرنا اور اس حوالے سے امت کے نونہالوں کی فکر دامنگیر ہونا ایمان کی علامت ہے، عمل صالح ہے۔ اللہ تعالیٰ قبولیت سے نوازے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ کی کتاب کا پہلا باب شروع ہو رہا ہے، فرماتے ہیں الباب الاول، پہلا باب، الانحراف فی حیات البشریہ، انسانی زندگی میں انحراف کب سے شروع ہوا، ولمحہ تاریخی عن الکفر والالحاد والشرک والنفاق، اور اسی طرح نفاق، شرک، کفر، الحاد، اس کا ایک تاریخی پس منظر، تاریخی دور۔ تو اس باب میں مؤلف نے کچھ فصول ذکر کیے ہیں، 5 فصلیں۔ پہلی فصل میں انہوں نے ذکر کیا انسانی زندگی میں انحراف کی تاریخ کیا ہے، کب سے پیدا ہوا انحراف۔ دوسری فصل ہے شرک اور اس کی تعریف اور اس کی اقسام۔ تیسری فصل ہے کفر کے بارے میں، چوتھی نفاق، اور پانچویں اس میں کئی چیزیں ہیں جیسے جاہلیت، فسق، ضلالت، ارتداد، اور ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اور ان کی اقسام کیا ہیں، اور ان چیزوں کے احکام کیا ہیں۔ تو 5 فصلیں انہوں نے یا 5 فصول انہوں نے اس ایک باب میں ذکر کیے ہیں۔ الفصل الاول، فصل اول، انسانی زندگی میں انحراف، الانحراف فی حیات البشریہ۔ مؤلف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور ان کے لیے رزق کے تمام وسائل مہیا فرما دیے ہیں تاکہ وہ یکسو ہو کر، یکسو یعنی اخلاص سے، یکرو ہو کر عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے، یعنی یہ جو مؤلف نے یہاں پر فرمایا اب اس کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اگر مؤلف سے کوئی کہے اس کی دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں، اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ نفسی انسانی کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے، مؤلف کا کلام ہے، کہتے ہیں نفسی انسانی کو اگر اس کی فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ضرور اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے گا اور اس کی ذاتی بابرکت سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا۔ یعنی اگر انسان کو کوئی گمراہ تحریک اپنی اس گمراہی کا شکار نہ کرے، اگر انسان کو فطرت پر چھوڑ دیا جائے تو ضرور وہ فطرت پر ہو کر کے اللہ کی الوہیت، یعنی اللہ کے بغیر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس بات کا اقرار کرے گا۔ وہ اللہ کی ذات بابرکت سے محبت کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا،
लेकिन जब उसे इंसान व जिन्नात के शैतान सिफत अफराद वरगलाते हैं, यानी जब उसको अपनी फितरत पर नहीं रहने देते हैं, अपनी चिकनी चपड़ी और पुरफिरेब बातों से बहकाते हैं, यानी उसे अपने उन जादुई कलामों से जो है बहकाते हैं, तो उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर वो उसे सिरात मुस्तकीम से हटाकर गलत राहों पर डाल देते हैं। गलत दोस्त, गलत असातिज़ा, गलत मुर्शिद जब किसी इंसान के हिस्से में आए तो वो उसको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं। मुअल्लिफ फरमाते चूंकि तौहीद इंसानी फितरत में वदीअत है, यानी असलन तौहीद मौजूद है, और शिरक एक आर्जी व नववारिद चीज है। शिरक आर्जी चीज है, नववारिद है, बाहर से आई हुई चीज है, नववारिद, नई जो चीज वारिद हुई हो। फितरत में असलन तौहीद है, फितरत में शिरक नहीं है। लिहाजा इंसान को अगर अपनी हालत पर छोड़ दिया जाए तो जरूर अपनी फितरत की तरफ लौट आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफन फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरा अन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह। बस आप यकसो होकर अपना मुंह दीन की तरफ मुतवज्जह करें, यानी अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत पर कायम रहें और अदियान बातिला की तरफ इल्तिफात न करें। अल्लाह की वो फितरत जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है, अल्लाह के बनाए को बदलना नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। तो यह हदीस से दलील है, इस बात की दलील कि इंसान फितरत पर जो है मुवहिद होता है। फितरतन इंसान मुशरिक पैदा नहीं होता है, मुवहिद पैदा होता है। और शिरक एक नई चीज होती है, शिरक असल नहीं है, असल तौहीद है। हर बच्चा फितरत पर तौहीद पर पैदा होता है, फिर माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी, मजूसी या मुशरिक वगैरह बनाते हैं। मुअल्लिफ फरमाते हैं लिहाजा औलाद आदम की असलियत तौहीद है, औलाद आदम की असलियत तौहीद है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अहद से सदियों तक, सदियों बाद तक इस्लाम ही उनका दीन रहा है। औलाद आदम का दीन इस्लाम रहा है सदियों तक। इरशाद रब्बानी है कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअस अल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन। पहले तो सब लोगों का एक ही मजहब था, लेकिन वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे तो अल्लाह ने नबियों को उनकी तरह बशारत देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा। सही अकीदा की इमारत में जब अगर आप कहते हैं कि भाई सही अकीदा ही असल है मुसलमानों की और इस्लाम ही असल है, सदियों तक लोग तौहीद पर रहे और फितरत पर ही लोगों ने जन्म पाया है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। और हदीस में यहाँ हाशिया में लिखा गया है, हाशिया नंबर 3 पर, कि फितरत के असल माना पैदाइश के हैं, यहाँ मुराद मिल्लत इस्लाम व तौहीद है। मतलब यह है कि सबकी पैदाइश का वो मुसलमान हो या काफिर, इस्लाम और तौहीद पर ही हुई है। तो अब जो है इन्हिराफ कहाँ से पैदा हुआ, इस अकीदा को लोगों ने कहाँ से कब से छोड़ा, इसकी तारीखी क्या वो तारीखी पस मंजर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो कहते हैं सही अकीदा की इमारत में शिरक व इन्हिराफ की दराड़ पहली मर्तबा कौम नूह में पड़ी। इस लिहाज से नूह अलैहिस्सलाम को पहला रसूल बनाया गया। जब कौम नूह में शिरक वजूद में आया, नमूदार हुआ, तो उस जमाने में पहला रसूल भेजने की जरूरत पड़ी, तो नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल मुकर्रर हुए। इरशाद रब्बानी है इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी है। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियानी अहद में 10 नस्लें गुजरी। 10 नस्लें, सब की सब इस्लाम पर थी। 10 नस्लें इस्लाम पर थी, यानी करीबन 1000 साल। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि यह कौल कतई तौर पर सही है, यानी यह कौल सही है कतई तौर पर, इसके ज़ईफ होने का कोई एहतिमाल नहीं है। सूरह बकरा की आयत मज़कूरा
सूरह बकरा की मज़कूरा आयत उबई इब्न कअब की किराअत में यूं आई है, फख्तलफू फबअस लहु नबिय्यन। यानी सूरह बकरा की मज़कूरा आयत जो है, उबई इब्न कअब नामी सहाबी की किराअत में ये है, कान नस उम्मतन वाहिदा फख्तलफू फबअस लहु नबिय्यन। और सूरह यूनुस की इस आयत से इस किरात को साबित किया गया है, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा फख्तलफू। और सब लोग पहले एक ही दीन व तरीका के यानी एक ही मिल्लत पर थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर लिया। इससे मौसूफ ने यह साबित किया है कि अंबियाई किराम की बेइज्जत का सबब इस सही दीन में जिस पर वो कायम थे लोगों का इख्तिलाफ था। यानी अंबिया किराम की बेइज्जत का सबब कौन सी चीज बनी, क्यों अंबिया भेजे गए? क्योंकि लोग जिस दीन पर कायम थे उस पर लोगों ने फिर इख्तिलाफ किया। जैसे कि मुल्क अरब के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे, यहां तक कि अमर इब्न लुहै अल खुजाई नामी शख्स आया, अमर इब्न लुहै अल खुजाई नामी शख्स आया और उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को बदल दिया। पूरे अरब में बिलउमूम और ख़ास तौर पर हिजाज में बुतों को लाकर भर दिया। लोग अल्लाह को छोड़कर इन बुतों की इबादत में लग गए। तो सबसे पहले बुत सरजमीन अरब पर किसने लाए हैं? अमर इब्न लुहै ने, पूरे अरब में और बिलउमूम और बिलखुसूस हिजाज में। इस तरह इस मुकद्दस शहर और उसके कुर्ब जवार में शिरक फैल गया, यानी मक्का मुकर्रमा और उसके आसपास के इलाकों में शिरक फैल गया। यहां तक कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, मिल्लत इब्राहिमी के इत्तिबा व पैरवी की दावत दी, अल्लाह की राह में भरपूर जो है मेहनत से काम लिया। यहाँ पर देखिए, आपने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया, मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा। तो यहाँ इन्होंने लिखा है मिल्लत इब्राहिमी के इत्तिबा व पैरवी की, तो की पढ़ना चाहिए, मिल्लत इब्राहिमी की इत्तिबा व पैरवी की दावत दी। यहां तक कि अकीदा तौहीद लोगों की जिंदगी में लौट आया, मिल्लत इब्राहिमी का इहया हुआ, बुत तोड़े गए और अल्लाह ने इस नबी उम्मी के जरिया अपने दीन को मुकम्मल फरमाया और तमाम जहानों पर अपनी नेमत की तकमील फरमाई। और इसी मनहज तौहीद व रिसालत पर इस उम्मत के इब्तिदाई दौर के लोग कायम रहे। फिर आखिरी सदियों में जहालत आम हो गई। ये देखिए, तारीखी पस मंजर बयान कर रहे हैं मौलवी, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग इब्राहिमी दीन पर थे, फिर अमर इब्न लुहै ने जब बुत लाए तो लोग दीन इब्राहिमी से दूर होते चले गए। फिर अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो वापस दीन इब्राहिमी पर लोगों को उन्होंने लाया, बुत तोड़े गए और अल्लाह के रास्ते में उन्होंने भरपूर जिहाद किया और मेहनत की, अल्लाह की राह में भरपूर जिहाद किया, यहाँ तक कि अक़ीदा तौहीद लोगों की जिंदगी में लौट आया। तो ये सारी चीजें हुई। फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग दोबारा उस सही दीन से दूर होते चले गए। आखिरी सदियों में जहालत आम होती गई, बहुत से दीगर मज़ाहिब के असरात दाखिल हो गए। फिर जलालत की तरफ बुलाने वालों के करतूत और अवलिया, बुजुर्गों की कब्रों पर पुख्ता इमारतों की वजह से शिर्क व बिदअत उम्मत के बहुत सारे अफराद में आम हो गई। अल्लाह ताला के बजाय बहुत से मुजस्सिमे इबादत के लिए चुन लिए गए, उनकी बारगाह में मिन्नत व समाज, दुआ, इस्तिगासा और नज़र नियाज शुरू हो गई। फिर इस तरह के शिरकिया अमल करने वालों ने अपने अमाल की तावील ये की कि ये बुजुर्गों की इबादत नहीं है बल्कि उनसे तवस्सुल और उनकी मोहब्बत का इजहार है। ऐसी तावील करते वक्त ये लोग भूल गए हैं कि पहले के मुशरिकीन की भी अपने शिरकिया अमाल की यही दलील हुआ करती थी, जिनका कहना यह होता था, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। हम तो इन लोगों की इबादत इसीलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह का मुकर्रब बना दें, यानी शायद उनके जरिए से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। इस तरह के शिरकी अमाल के बावजूद, जिनमें अक्सर लोग हर जमाने में मुब्तला रहे हैं, आमतौर पर मुशरिकों की अक्सरियत तौहीद रुबूबियत की कायल रही है। मुशरिकों की अक्सरियत तौहीद रुबूबियत की कायल रही है।
इनका शिरक सिर्फ इबादत ही में मुनहसर रहा है। अल्लाह का फरमान है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून, इनमें से अक्सर लोग बावजूद अल्लाह पर ईमान रखने के भी मुशरिक ही हैं। बनी नौ इंसान में से रब परवरदिगार के वजूद का इनकार बहुत ही कम लोगों ने किया है, और उनमें से जैसे फिरौन, मुल्हिदीन, एथिस्ट्स, दहरीयीन, दहरी यानी दहरी उनको कहते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद पैदा हुई है, जमाने से सब कुछ होता है, और असर हाजिर के कम्युनिस्ट वगैरह। फिर भी उनके इनकार की वजह हट दर्मी है, वरना अंदरूनी तौर पर ये लोग भी रब यानी परवरदिगार के वजूद के कायल हैं। इसी तरह के लोगों के बारे में अल्लाह ताला का ये इरशाद है वजहदू बिहा वस्तयक़नहा अनफुसुहुम जुल्म व उदुवा, और उन्होंने बेइंसाफी और गुरूर में आकर इन बातों से इनकार किया, हालांकि उनके दिल यकीन कर चुके थे। इसी तरह के लोगों की अक्ल व आगाही जरूर गवाही देती है कि हर मखलूक का कोई ना कोई खालिक होता है, और हर मौजूद शय के लिए कोई ना कोई मूजिद यानी ईजाद करने वाला होता है, और इस कायनात के इस मुनज़्ज़म व मुस्तहकम निज़ाम को कोई मुदब्बिर, हकीम, बेपनाह कुदरत रखने वाला और हमगिर इल्म रखने वाला चला रहा है। इस बात का इनकार वही कर सकता है जो अक्ल से आरी हो, या ऐसा हट धर्म हो जिसने अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया हो, अपने नफ्स को बेमसरफ बना दिया है, जिसका किसी मामला में कोई एतबार नहीं है। तो मोअज़्ज़ज़ तुल्लाब, यहाँ तक आज का ये पहला दर्स मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आप कुछ दुरूस सुनेंगे इस किताब के हवाले से। तो आज के दर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह लोगों में असल तौहीद है, और फिर कैसे इंसानी जिंदगी में इन्हिराफ पैदा हुआ। सबसे पहले 10 सदियां गुजरने के बाद, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद फिर 10 सदियों तक, जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, 10 सदियों तक लोग सही दीन पर कायम रहे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से उस दौर में इन्हिराफ पैदा हुआ, शिरक पैदा हुआ, तो नूह को बहैसियत रसूल मबूस किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता रसूल भेजे गए, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोग जो दीनी इब्राहिमी पर कायम थे। फिर अम्र इब्न लुहाई ने सबसे पहले वहां बुत लाए, और लोगों ने जब बुत परस्ती शुरू की तो अल्लाह ने अपने आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। तो उसके बाद उनके सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, कुरून सलासा, जो पहले बुनियादी अजीम 3 तबका थे और पहली बुनियादी 3 अजीम सदियाँ थी, उनमें लोग तौहीद पर रहे, सुन्नत पर कायम रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता बाद के लोगों में, बाद की सदियों में जो है वो जहालत पैदा हुई, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मतलब ताबीन के दौर से ही लेकर के लोग इस दीन से किसी हद तक दूर चले जाते रहे। तो इस तरह से फिर लोगों में दोबारा वो जो है जलालत और गुमराही और इन्हिराफ वगैरह वो फैलता गया। तो कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने रब का इनकार किया, लेकिन अक्सर लोग ऐसे थे जिन्होंने तौहीद रुबूबियत तो मान लिया, लेकिन तौहीद उलूहियत को नहीं माना, यानी अल्लाह को माबूद मानने में उन्होंने कोताही की, माबूद बरहक, बल्कि अल्लाह की इबादत में अल्लाह के साथ शरीक भी किए, जबकि अल्लाह को रब मानने में उन्हें कोई तामुल या कोई इनकार नहीं रहा है। तो इस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो शिरक और इसी तरह गुमराहियों में और इसी तरह इन्हिराफ में मुब्तला हुए। तो ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को इस इन्हिराफ से जो है निकाला जाए, शिरक से निकाला जाए, तौहीद की दावत दी जाए, इसके लिए मेहनत की जाए, तालीम आम की जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, लोगों को असल दीन से वाकिफ कराया जाए। तो इसी के लिए मौलिफ रहमहुल्लाह ने ये किताब लिखी है, और शायद यही मकसद है जमात अहले हदीस तहसीलदार बल्कि कि लोगों में एजुकेशन को आम किया जाए, तालीम को आम किया जाए, ताकि लोगों की निगाहें जो है वो पढ़ने और पढ़ाने की तरफ उनकी निगाहें और उनके तवज्जह मरकूज हों, और लोग दीन को खुद यानी इल्म को खुद पढ़ सके, एजुकेशन आम हो। और फिर इंशाअल्लाह ताला जब तालीम आएगी तो अमल की भी तवक्का करेंगे। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने के बाद अमल करने से नवाजे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन तमाम रफ़ाक़ा को अजर अज़ीम से नवाजे जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम मुनाक़द करने में हौसला अफजाई की है और जिन्होंने मुआवनत की है।
अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम से नवाजे। मैं तहसील नारबल का, जमात अहले हदीस तहसील नारबल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इन लेक्चर्स के लिए जो है मौका दिया है। अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर से नवाजे और हम सब को इल्म हासिल करने, इल्म पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ तालिब इल्म, तुल्लाब व तालिबात, अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ाए खैर से नवाजे। वाकई आपने बहुत अच्छा रास्ता इख्तियार किया है, इल्म का रास्ता इख्तियार किया है, एजुकेशन का रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह ताला हमारी जहालत हमसे दूर फरमाए, हमें इल्म नाफ़िअ अता फरमाए, उस पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। और आपके वालिदैन मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने आपकी फीस पे की है, जिन्होंने आपको मौका दिया है कि आप किताब पढ़ें, आप किताब से अपना रिश्ता जोड़ें। आप देखते हैं कि आए रोज किताब से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो आपका रिश्ता किताब से हो, आपका रिश्ता इल्म से हो। आप पढ़ाई में ध्यान दें, आप एजुकेशन में ध्यान दें। अल्लाह ताला आपको और हमें भी इल्म हासिल करने और इल्म पर अमल करने की तौफीक से नवाजे। अभी ये मजहबी क्लास है, अभी ये शरई इल्म की क्लास है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम इसी किस्म की तालीम पर उभारेंगे, नहीं तो इसी तरह हम दुनियावी तालीम के लिए भी तालिब इल्म को उभारते रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारे समाज को डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, माहिरीन तालीम की भी ज़रूरत है, टीचर्स की ज़रूरत है। तो हम, अल्लाह बचाए हमें, हम कोताह बीनी के शिकार नहीं है, हम दुनियावी तालीम से लोगों को मुतनफिर नहीं करते हैं। आप तालिब इल्म है, आप में से कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, आप में से कुछ इंजीनियर्स भी होंगे, आप में से कुछ ऐसे तालिब इल्म होंगे जो मेडिकल पढ़ रहे होंगे, जो दूसरे उलूम पढ़ रहे होंगे। तो आप ये ना समझें कि शायद हम गलत कर रहे हैं, नहीं, आपका रास्ता सही है। अगर आपने इल्म का रास्ता चुना है, एजुकेशन का रास्ता चुना है, अल्लाह आपको उस पर कामयाबी से नवाजे। और साथ साथ अगर आप दीनी तालीम का हिस्सा भी हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको कामयाबी और अजर अज़ीम से नवाजे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।